और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दर्दनाक हादसा हुआ है। जी हां, छत का एक हिस्सा गिरा है और एक शख्स की मौत की खबर भी मिल रही है। Was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR operates this terminal. Yes. Have you sought any clarification from them, because this structure is of 2009 and in 15 years it has collapsed? Like you have said, this structure has been built in 2009. And what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited also, is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country, any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also to come into play. Any compensation for the disease? Yes, compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased, and also for the injured 3 lakhs. सर, एक चीज जानना है कि ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। तो इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है। वो सब तो अभी हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड दिस थिंग एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। That has to be, I just got to know in the morning, and since then we have been, first of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol, that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented upon after the report comes in. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए जब तक ये बंद है, अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं, हाँ, मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू दैट थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी ऑन दैट। कमेटी का हिस्सा है, कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो देखता है DGCA, दैट विल बी पार्ट। एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज। जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। तो नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू को आप सुन रहे थे। उनका कहना है वो पहुंचे थे एयरपोर्ट पर जायजा लेने के लिए, और एयरपोर्ट का नया हिस्सा ये जो छत गिरी है ये 2009 में, जैसा कि वो बता रहे थे कि 2009 में बनी थी, और
इसकी जांच करवाई जाएगी, रिपोर्ट जब आएगी तब कार्रवाई होगी। कौन इसके लिए दोषी है हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुआवजे का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया है। घायलों को क्या मुआवजा मिलेगा, और क्योंकि एक शख्स की मौत हुई है तो उसके घर वालों को क्या मुआवजा मिलेगा। मौके पर राहत बचाव का काम जो है वो जारी है और फिलहाल इवैक्यूएट कर दिया गया टर्मिनल 1 को। वहां से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कोई इस वक्त टर्मिनल 1 पर मौजूद नहीं है। जो भी फ्लाइट्स वगैरह है वो टर्मिनल 2 या 3 से जाएंगे। प्रेरित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेरित, राम मोहन नायडू खुद पहुंचे थे जायजा लेने के लिए, मुआवजे की भी बात की और अब रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट जब सामने आएगी तभी कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल एक बहुत अहम बनता है कि अभी तो हल्की ही बारिश हुई थी, प्री मानसून की बारिश थी, तो क्या पहले से तैयार नहीं थे या पहले से देखा नहीं गया था कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं। एयरपोर्ट की बात है और वो भी दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं जो विश्वविख्यात है। आप बिल्कुल देखिए कि इस वक्त जब नागरिक उड्डयन मंत्री खुद यहाँ उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उन्होंने जांच कमेटी का गठन कर दिया है और वो रिपोर्ट इस पर पूरी तरीके से जांच करके बनाएंगे कि आखिर क्या कुछ लापरवाहियां इसमें रही है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बताया है कि जिनकी मौत हुई उन्हें 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और जो लोग घायल है उन्हें 3 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। उसके साथ ही उन्होंने बताया है कि फिलहाल इस टर्मिनल का सारा ऑपरेशन बंद है, जिसे टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ये संभावना उन्होंने बताया कि कल तक की टर्मिनल फिर से वापस ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी कि जिस तरीके से ये घटना हुई उस घटना को लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें बताई। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि घटना कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है ये सीख है कि तमाम जो अन्य जो टर्मिनल है वहां पे भी उसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही साथ देशव्यापी जो तमाम जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो बड़े एयरपोर्ट है उनकी भी जांच की जाएगी ताकि इस तरह की घटना ना हो सके। लेकिन साफ तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटना लापरवाही अगर हुई है तो उसको बरता नहीं जाएगा, साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरीके से फिलहाल जो है यहाँ से जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन मौके पर आपको मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, देखिए अभी भी गैस कटर के जरिए जो है वो तमाम जो मलबे हैं जो लोहे हैं उन्हें काटने की कोशिश की जा रही है, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी मंत्रालय की तरफ से कोशिश है, दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है इस मलबे को हटाया जा सके और एक बार फिर से इसे सुचारू रूप से चालू किया जा सके। जिसको लेकर के अभी मौके पे यहाँ पे तमाम जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी थे वो यहाँ मौके पे मौजूद थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। जब यहाँ पे खुद जब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री यहाँ पे इस पूरे इलाके का जायजा ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके की यह घटना हुई वो घटना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है वो सबब है कि दिल्ली एयरपोर्ट देश के एक व्यस्तम एयरपोर्ट में यह माना जाता है। और जिस वक्त ये घटना हुई है उस तो आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए जिस तरीके से ये जो घटना घटी है तो क्योंकि ये देखिए सुबह 5 बजे के आसपास की घटना है और उस वक्त जो है यहाँ पे लोग जो आप देख रहे हैं वो पार्किंग का हिस्सा है जहाँ पे वो गिरा है। और उस दौरान जब वो गिरा उस वक्त कई लोग इसके चपेट में आए जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो देश के एक व्यस्तम एयरपोर्ट में एक है, उस एयरपोर्ट पे अगर इस तरह की घटना घटी है तो कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर इसके जो किसके सुपरविजन में ये था, वो इंस्पेक्शन इस पे क्यों नहीं कर रहे थे, इसके मेंटेनेंस को लेकर के कहाँ कुछ लापरवाहियां थी। और इसको लेकर के साफ तौर पर जो है केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि उन्होंने जांच बिठा दी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से भी इसकी एक जांच रिपोर्ट बनाई जा रही है। उस जांच रिपोर्ट को देखने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से हो सकती है। साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट के जो तमाम जो टर्मिनल्स है उसके अलावा देश के अलग अलग जो एयरपोर्ट है उन एयरपोर्ट्स पे भी इस तरह के जो है उसके सुपरविजन की जाएगी ताकि वहां पे इस तरह की घटना न घट सके। क्योंकि ये देखिए बड़ा एक हादसा माना जाता है दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जिस तरह से ये घटना घटी है कि इसकी चपेट में लोग आए हैं, उसकी एक शख्स की मौत हो गई है। और आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए इसका ये जो पूरा हिस्सा है इसका आधा हिस्सा जो है वो टूटा है और आधा हिस्सा फिलहाल अभी बना हुआ है। लेकिन आपको बताओ जैसे ये घटना उस घटना के बाद से तमाम जो इसके सिक्योरिटी चेकिंग के जो गेट थे उन्हें बंद कर दिया गया और यहां से धीरे धीरे करके तमाम जो पैसेंजर्स थे उन्हें दूसरी तरफ से शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया है कि जो तमाम जो विमान कंपनियां हैं उन कंपनियों को भी यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो पैसेंजर्स हैं उनके पैसे रिफंड किए जाएं और अगर वो कोई अल्टरनेटिव उसकी व्यवस्था चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था करी जाए। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पैसेंजर्स के पक्ष में खड़ी दिखाई पड़ रही है और सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की लापरवाहियों को बरता नहीं जाएगा और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके उसको लेकर के जांच कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी ताकि इस तरह से जिनकी जो लापरवाहियां रही उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल प्रेरित, आप यहाँ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसमें यह भी दिख रहा है कि जो छत गिरी है, जो लोहे लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं जंग खाए हुए हैं। तो बात यहाँ मेंटेनेंस पर उठती है कि एयरपोर्ट है और यहाँ तो टाइम टू टाइम मेंटेनेंस के लिए जो टीम रही होगी वो जांच करती है। तो क्या जांच नहीं की गई थी? जंग लगे हुए ये जो लोहे के सरिये दिख रहे हैं, क्या ये हल्की बारिश भी अगर झेल नहीं पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ा हादसा आगे आने वाले दिनों में भी हो सकता है। टर्मिनल 1 का यह हाल है, टर्मिनल 2 और 3 की भी अगर बात करें तो वहां भी जांच होनी चाहिए।
अब बिल्कुल देखिए कि एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो लोहे का जो वो पिलर है उस पिलर में पूरा जंग खाया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जो मेंटेनेंस की जो कंपनियां थी जिनको मेंटेनेंस की अथॉरिटी मिली थी वो आखिर क्या कर रहे थे। क्या उन्होंने अगर सही समय पे अगर उन्होंने इसकी जांच की हुई होती तो इस तरह की लापरवाहियां देखने को नहीं मिलती। जहां एक शख्स की जान चली जाती है, 6 इस वक्त जो है वो घायल अस्पताल में है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। और साथ ही साथ जो पैसेंजर्स उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस हादसे के बाद एक दहशत देखने को मिला। जब पैसेंजर्स के भीतर ये दहशत देखने को मिल रही थी कि इस तरह के हादसा भविष्य में भी उनके साथ हो सकता है, वो डरे हुए थे। लेकिन पैसेंजर्स का भी साफ तौर पर कहना है कि जब ये घटना घटी उसके बाद उनके लेकर के भी कई सारी अव्यवस्थाएं हुई है। जो लोग यहाँ से जाने वाले थे और उनको कोई अल्टरनेटिव उस वक्त व्यवस्था नहीं मिली, कई लोग घर वापस जा चुके हैं, कई लोग इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं देखिए कि एक बड़ा हादसा है जिस हादसे की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो तमाम जो अथॉरिटीज है, जो एजेंसीज है, जिनकी जिम्मेदारी थी कि इसके समय समय पर इसका निरीक्षण हो, समय समय पर इसका सुपरविजन हो, वो उनमें आखिर कहां कुछ चूक हुई, जिसको लेकर के सख्त लहजे में भी केंद्रीय मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। जांच की रिपोर्ट जैसे ही उनके पास आएगी उस रिपोर्ट के बाद जो है कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो सके उसके मद्देनजर भी तमाम जो और जो दिल्ली के देश के जो एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली के तमाम जो टर्मिनल्स हैं, उन टर्मिनल्स के भी इंस्पेक्शन होगा ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके, किसी और की जान न जा सके। क्योंकि देखिए ये अभी प्री मानसून की ये बारिश थी, अगर प्री मानसून की बारिश में अगर ये स्थिति हो सकती है तो भविष्य में कितना भयावह हो सकता है। जी बिल्कुल प्रेरित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब आपको